السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم نے آپ سے سلام کیا اور کتنے پکے آپ حسنی ہیں اور کتنے پکے حسینی ہیں ہم نے سلام میں جان لیا۔ یہ پروف ہے اگر ایک دوست دوسرے دوست سے دوستی کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس سے سلام کرے، نمستے کرے۔ جب آپ سلام کرو گے، نمستے کرو گے تو ایک دوسرے کا انٹروڈکشن لینے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان آپ ہیں لیکن پڑھے نہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ سلام کا جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ اگرچہ میں آپ کا دشمن ہوتا اور میں آپ کو سلام کرتا تب بھی آپ جواب دیتے۔ چلیے میں پھر سے کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 مرتبہ ہو گیا ہے، 1 مرتبہ اور کر لوں۔ حمد خدا ہو دوستو، نعت رسول ہو، حمد خدا ہو دوستو، نعت رسول ہو، پہلے میرا سلام محبت قبول ہو۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وطہ ویاسین، وابنہ الغوث العظم الجیلانی والبغدادی اجمعین، وخواجہ معین الدین، واولیاء سابقین، دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی المکین الامین الرؤوف الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وان الحمد للہ رب العالمین۔ تقریر آپ کی دعا سے، کل ثاقب رضا خان گونڈا کی سرزمین پر بولا اور مائک اتنا اچھا تھا کہ ہم گئے تھے 1 گھنٹے بولنے کے لیے، لیکن پبلک نے 1.5 گھنٹے ایکسٹرا بلوایا، اور ہم کو بولنے اور بلوانے دونوں ایکسپیرینس ہیں۔ ہم تمہاری دعاؤں کا سہارا لے کے ہندوستان کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر 5 تاریخ تک گجرات پھول باڑی میں نے بولا، اور کل گونڈا بولا، آج آپ کے دیار اقدس میں میں حاضر ہوں۔ جب سے میں آرام کر رہا تھا اس پیریڈ سے اب تک میں یہی سنتا ہوں کہ مائک آواز گھسیٹتا ہے، مائک یہ خراب ہے، مائک میں وہ خراب ہے۔ یہ سب پہلے کیا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ پیسہ لگائیں گے اتنی زیادہ آپ کو فیسلٹی ملے گی۔ آپ اچھا پیسہ لگائیں گے آپ کو اچھا مائک ملے گا۔ ہم لوگ تو اس مائک پہ تقریر کیے ہیں، یوٹیوب پہ سن لینا، بہت سے میرے بیان یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں۔
کہ اگر سوئی گر جائے ڈائس پہ تو ممبر سے آواز کم سے کم 2-3 مرتبہ سوئی کی ریپلے ہوتی ہے. ایسا بیس، ایسا ساؤنڈ، ایسی سیٹنگ ایسا نہیں. مائک کے پیچھے مت پڑیے. اگر واقعی میں آپ امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دل کھول کر کے خرچہ کیا کریں. میں نے جو قرآن کی تلاوت کیا، اللہ عز و جل اپنے قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب آپ اس کا سیدھا سا ترجمہ سماعت کر لیں. ٹرانسلیشن، معنی اور میننگ، اتر اور پریبھاشا آپ سمجھ. اللہ نے فرما دیا اے میرے محبوب. یہ کس کے لیے؟ اے میرے محبوب. محبوب کا جملہ ان کے لیے جو کلوز ہوتا ہے، جو قریب ہوتا ہے، جو ایک دم چپکا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے محبوب. محبوب جس سے زیادہ پیار کیا جائے. اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب. اب محبوب کون؟ محبوب کہاں ہے؟ پوری دنیا جانتی ہے. محبوب کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب فرما دو. کن سے؟ مسلمانوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے دیوانوں سے. بتا دو میں نے تمہیں قرآن دیا، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں نماز دیا، میں نے تمہیں حج دیا، میں نے تمہیں زکات دیا، بلکہ اے میرے محبوب کہہ دو میں نے تمہیں رحمان بھی دیا. اللہ کے نبی کا یہ صدقہ ہے جو ہمارے پاس نماز، قرآن، اسلام، حج، زکات یہ میرے نبی نے دیا. اس کا ترجمہ اللہ سلکم علیہ اجرا. اتنی آیت کا ترجمہ یہ ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى. ارے محبوب اور بتاؤ، اس کے آگے بیان کرو اپنے ماننے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو کہ اگر میں تم سے قرآن دینے کے عوض میں، اسلام دینے کے عوض میں، نماز دینے کے عوض میں، اذان دینے کے عوض میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، کچھ بھی سرمایہ نہیں چاہتا، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى تو میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو. اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا لا سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نماز دیا، قرآن دیا کس نے؟ محمد نے. اب آقا فرماتے ہیں اگر ان سب کو دینے کے عوض میں تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے، میرے خاندان سے آپ محبت کیا کریں. یہ آقا نے فرما دیا. اب آپ سن لیں اہل بیت ہے کیا؟ اللہ کے نبی کے عاشق یوں عرض کرتے ہیں کہ حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. حسین یوں ہی نہیں سر کٹا کے سوئے ہیں، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کے سوئے ہیں. اور بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، بدن حسین کا ہے فاطمہ کی چادر پر، زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں، زمین پہ عرش معلا بچھا کے سوئے ہیں. اور افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ضلع پڑتا ہے جونپور، جونپور ضلع میں ایک گاؤں پڑتا ہے نور الدین پور. یہ کتاب کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولانا ثاقب رضا خان رودونی کی سرزمین سے آئے تھے، تم کو جو بیان کیا کون سی کتاب سے کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کتاب کا نام تاریخ کانپور. کون سی کتاب؟ کون سی؟ تاریخ کانپور. کتاب کا نام تاریخ کانپور. اس کتاب میں یہ واقعہ انڈنٹ ہے، 135 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے.
जौनपुर जिले में जो नूरुद्दीनपुर गांव है उसमें एक मुसलमान रहता है। मुसलमान तो बहुत से रहते हैं, कई हिंदू भी रहते हैं, कई गैर मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन एक मुसलमान है जिसने अपनी बीवी का इलाज हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर से किया, हिंदुस्तान के तमाम हकीमों से किया, हिंदुस्तान के तमाम तबीबों से किया, लेकिन डॉक्टर सब लाइलाज हो गए। उसको 27 साल गुजर गया था, कोई बच्चा नहीं था। 27 साल हो गया था, कोई औलाद नहीं पैदा हुई थी। और मुसलमान का नाम था रईस, वो सैयद था, आले रसूल के घराने का था। जब बच्चा कोई नहीं पैदा हुआ, इलाज करते करते थक गया, हैरानों परेशान हो गया, काफी डिस्टर्ब हुआ, सोच में पड़ा है कि मैं क्या करूं। अगर पड़ोसी से लड़ाई होती तो पड़ोस की बीवी उसकी बीवी को ताना देती कि तू अभागन है, तेरे बच्चे नहीं हो सकते, तेरा पेट बंधा है, तेरी कोख बंधी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तमाम ताने खा खा के वो थक गई। एक दिन अचानक सो रही है और सोने के बाद अचानक जग जाती है। जगती है तो सोच में पड़ी है, इनके बारे में सोचती है, उनके बारे में सोचती है, इधर उधर सोचना शुरू करती है। ऑटोमेटिक दिमाग आता है, दिमाग में बातें आती हैं करबला वाले की, तो करबला के जानिब मुंह किया। अब मियाँ को जगा लिया और मियाँ को जगाकर खड़ी हो गई। खड़ी होकर के अपने दामन को करबला के जानिब, ये हिंदुस्तान का मामला है, करबला इराक के अंदर बना है, करबला इमाम हुसैन का इराक में है। हमारा इमाम आली मकाम इराक की सरजमी पर जलवा अफरोज है। इराक में इमाम हुसैन की जो मज़ार मुबारका बनी है वो सोने से पूरी कई बीघे में वो सोने से बनी हुई है, लेकिन मेरा इमाम इराक में है। और हिंदुस्तान का वो रईस और उसकी बीवी अब भीख मांगना शुरू करती है और दामन को फैला दिया। ऐ करबला के ताजदार, हमने हिंदुस्तान के डॉक्टरों का इलाज किया है, हमने हिंदुस्तान के तबीबों का इलाज किया है, हमने हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टर और तमाम हकीम तबीब, तमाम मौलाना और तमाम साधु संतों का इलाज किया है कि मेरी बीवी को कोई बच्चा हो जाए, मेरी बीवी को कोई बच्चा हो जाए, लेकिन सबने इलाज कर दिया है। ऐ करबला के ताजदार, क्या तुम भी मुझे ला इलाज कर दोगे? दुनिया को मसीहा तुम्हें कहती है, ला इलाज सब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तुम हो। ऐ करबला के ताजदार, ऐ इमाम हुसैन, जरा मुझे एक बेटा अता फरमा दो। अब करबला के ताजदार से भीख मांगना शुरू कर दिया, रो रो कर भीख मांग रहे हैं, सिसकियां बंधी हुई है, आंखें अश्कबार है, जमीन पर आंसू के कतरे गिर रहे हैं। अब शौहर भी रो रहा है और करबला के जानिब अपने दामन को फैला लिया और दुआ मांगा, ऐ करबला के ताजदार मुझे भीख अता फरमा दो और भीख में मुझे बेटा अता फरमा दो। जब तक हम जिंदा रहेंगे तो मेरे नाम पर नामे हुसैन करते रहेंगे, लंगरे हुसैन करते रहेंगे, सबील पिलाते रहेंगे, नंगों को कपड़ा पहनाते रहेंगे। अब दुआ तो मांग लिया, रात में दोनों मियाँ बीवी सो जाते हैं और सोने के बाद चंद महीने गुजर गए। अब जब चंद महीना गुजरा तो चंद महीने के बाद बीवी को जाहिर हुआ कि मुझे लगता है कोई बच्चा मेरे पेट के अंदर हमल ठहर गया है। अब चंद महीने गुजरते हैं, 9 महीना करीब आ गया, यानी एक बच्चा पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम भी रईस भाई ने हुसैन रख दिया। अब जब हुसैन नाम रख दिया, अब पूरे जौनपुर के लोगों ने देखा और पूरे नूरुद्दीनपुर गांव के लोगों ने देखा, लोग पूछने आने लगे। जो लोग ताना देते थे, जिनकी औरतें उसकी औरत से जब लड़ाई करती थी तो लड़ाई के दौरान कहती थी तू कभी मां नहीं बन सकती है, तू बांझा है, तू कभी मां नहीं बन सकती है, तू बांझा औरत है। अब सब उसके दरवाजे पर भीड़ लगाए हुए हैं और सबने पूछना शुरू कर दिया, अरे बहन जरा तुम ये बता दो, कौन से डॉक्टर से तुमने इलाज किया है, कौन से हकीम से तुमने इलाज किया है, कौन से तबीब से तुमने इलाज किया है, जरा उस डॉक्टर का नाम बता दो जिसने 27 साल के बाद तुम्हें बेटा अता फरमा दिया। तो शहरबानों ने रोना शुरू कर दिया और रईस ने रोना शुरू कर दिया, रो रो कर पूरा मंजर बयान फरमा दिया। अरे हमने हिंदुस्तान के तमाम डॉक्टरों से इलाज किया, तमाम हकीमों से इलाज किया, तमाम तबीबों से इलाज किया, लेकिन इलाज करते करते थक गए, खाना खाते खाते थक गए, हैरान परेशान हो गए। लास्ट में हमने तो सबसे बड़े मसीहा है करबला के ताजदार इमाम हुसैन से हमने मन्नत मांग लिया, ऐ करबला के ताजदार मेरी सूनी गोद है, इसे आबाद फरमा दो, मुझे कोई बेटा नहीं है, मुझे एक बेटा का फरमा दो। जब तक जिंदा रहेंगे मुहर्रम की 10 तारीख को लंगरे हुसैन करेंगे, मुहर्रम की 10 तारीख को हम नंगों को कपड़ा पहनाएंगे, मुहर्रम की 10 तारीख को भूखों को खाना खिलाएंगे, मुहर्रम की 10 तारीख को प्यासों को पानी पिलाएंगे। अब वही काम करना शुरू कर दिया। मुहर्रम की जब 10 तारीख आ गई तो उस औरत ने, मुसलमान की औरत शहरबानों ने और रईस भाई ने अपने दरवाजे पर लंगरे हुसैन का बोर्ड लगवा दिया, जिस तरीके से पीछे लिखा है करबला के शहीदों को सलाम। अब इसमें देखिए हरिओम पांडे और देखिए दिलीप सिंह और विष्णु सिंह और तमाम मुसलमान हैं, इनके नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरा इनका अकीदा देखो, ये तो गैर मुस्लिम मजहब के मानने वाले हैं, ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो कलमा को नहीं है, लेकिन इनका अकीदा है
कि हुसैन के नाम पर अगर कुछ भी खर्च किया जाएगा तो हुसैन कल भी देते थे, आज भी देते हैं और कयामत तक देते रहेंगे। अब देखें, अब उन्होंने अपने दरवाजे पर एक बोर्ड लगवा दिया, रईस भाई ने बोर्ड लगवाया और बोर्ड पर लिखवा दिया लंगरे हुसैन जिंदाबाद, लंगरे हुसैन जिंदाबाद, और लिखवा करके अब अपने दरवाजे पर डेग लगवा दिया और डेग में खिचड़ा बनवाया और लोगों को बुला बुला कर खिलाना शुरू कर दिया। भाई जरा करीब आ जाओ, भाई जरा करीब आ जाओ, ये लंगरे हुसैन है, इसे खा लो, ये लंगरे हुसैन है, इसे खा लो। अब लंगरे हुसैन लोग खा रहे हैं। अगर कोई गरीब निकलता तो रईस भाई बुला बुला करके उसको चुपके से पैसे दे देते और उसको चुपके से कपड़े पहना देते। अब उनकी बीवी का दस्तूर ये बन गया कि जब मक्के में, जब उस जमाने में कोई गरीब हिंदुस्तान में होता था तो उनके दरवाजे पर जाता तो इमाम हुसैन का सदका खाता था। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फयूज़ो बरकात वाला वो शीरनी खाते और सब खाते रहते। ये सिलसिला रईस भाई ने 10 साल तक किया और पड़ोस में एक सोनार रहता था। उस सोनारन की बीवी ने अपने शौहर से कहा, एक बात समझ में नहीं आई, अभी तक तो मुसलमान के दरवाजे पर, रईस के दरवाजे पर कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ ही नहीं था, लेकिन ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि आज 10 साल गुजर गया, 10 साल में इनके दरवाजे पर बड़ा लंगर होता है, बड़ा इनके दरवाजे पर मजमा लगता है, बहुत से लोग इनके दरवाजे पर आते हैं और कोई खाना खाता है, कोई पानी पीता है, कोई क्या करता है, कोई कपड़ा लेकर जाता है, कोई पैसा लेकर जाता है। ये रईस कितना अमीर हो गया है। अपने शौहर से कहा तो शौहर ने बताया, अरे मेरी बीवी सुनो सुनो गौर से, कहा क्या बात है, कहा तुम औरत हो, औरत को मोटिवेट कर लेती है, औरत को गाइड कर लेगी, पहले बात जाना इधर की करना फिर उधर की करना, जब देखना कि मुसलमान औरत का मूड फ्रेश है, रईस की बीवी का जहन सही है, तो उस टॉपिक पे आ जाना जो असल टॉपिक तुम्हारा है, पूछना ये क्या करती हो। अब वो सोनारन आती है घर के अंदर, आने के बाद बैठ जाती है और बैठने के बाद तमाम बातें इधर की उधर की करती है। जब देखा कि मूड एकदम फ्रेश है, मूड सही है, बात करने का अंदाज सही है, बात में कोई गुस्सा नहीं देखा, बात के अंदर कोई लड़खड़ाहट नहीं देखा, बात के अंदर कोई जरा सा भी घुमने और गुरूर और तकब्बुर नहीं देखा, तो कहना शुरू कर दिया, अरे बहन जरा एक बात बता दो, मेरे जहन के अंदर एक सवाल है, मेरे शौहर भी परेशान है, 10 साल हो गया, तुम अपने दरवाजे पर एक बोर्ड लगाते हो जिसके ऊपर लिखते हो लंगरे हुसैन जिंदाबाद, लंगरे हुसैन जिंदाबाद। एक बात बता दो, तुम कितनी अमीर हो गई हो, तुम कितनी पैसे वाली हो गई हो, तुम कितनी मालदार हो गई है। पहले तो तू गरीब थी, तो बहन रोने लगती है, शौहर रोने लगता है। अब वो लड़का 10 साल हो गया है, 10 साल का बच्चा खड़ा होकर सुन रहा है। माँ ने बयान फरमाया, सुनो, ये जो मेरा चांद सा बेटा है, ये जो मेरा चांद सा नूरे नजर है, ये जो मेरा लखते जिगर है, ये 27 साल के बाद हिंदुस्तान के डॉक्टर ने नहीं दिया, तमाम हकीमों ने नहीं दिया, तमाम तबीबों ने नहीं दिया। अगर किसी हकीम ने दिया है, अगर किसी तबीब ने दिया है, तो मैंने करबला के ताजदार की तरफ अपने आंचल को फैला दिया और फैला करके भीख मांगा, और करबला के ताजदार मुझे भीख अता फरमा दो और भीख में मुझे एक बेटा दे दो। जब तक जिंदा रहेंगे लंगरे हुसैन करते रहेंगे, ये हुसैन का सदका हम बता रहे हैं। और बहन सुनो, जब से हुसैन से मैंने मन्नत मांगा है, मैं इतनी अमीर हो गई कि मैं अंदाजा नहीं लगा पाती हूँ मेरे घर में पैसे आते कहाँ से हैं। अब जरा आप मुलाजा फरमाए। वो मुसलमान की औरत से सोनारन ने कहा, बहन सर एक बात बताओ, तो क्या इमाम हुसैन अपनी ही बिरादरी की मन्नत सुनते हैं? क्या इमाम हुसैन अपने ही मुसलमानों की मदद करते हैं कि गैरों की मदद करते हैं? मुस्लिम औरत ने जवाब दिया, और कैसा जवाब इतना शानदार, जवाब इतना जानदार कि आपका ईमान ताजा होता है। जवाब में क्या जवाब दिया? जवाब ऐसा दिया, कहा बहन गौर से सुनो, बैठे आप, बैठे आप लोग, बैठे कहाँ जा रहे हैं? जवाब क्या दिया? कहा बहन क्या हुसैन मुसलमानों की ही मन्नत कबूल करते हैं? बहन क्या हुसैन मुसलमानों को ही नवाजते हैं, किसी गैर मजहब को नहीं नवाजते? तो मुसलमान औरत ने और रईस भाई ने और वो हुसैन का बच्चा हुसैन खड़ा है। जवाब दिया माँ ने, जवाब दिया शोहर ने, नहीं। अगर डॉक्टर ये देख ले कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, अगर डॉक्टर के दिमाग के अंदर कास्ट फीलिंग आ जाए तो 90% लोग वैसे ही मर जाएंगे।
बदले की भावने में मर जाएंगे। इसलिए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ जात नहीं देखी जाती, मांगने का तरीका देखा जाता है। अगर तुम्हारा तरीका अच्छा है, अगर तुम्हारा किरदार अच्छा है, तो हुसैन ने हमें एक बेटा 27 साल के बाद दिया है, तुम्हें क्या जरूरत है? कहा तुम तो जब से आई हो जानती हो, मुझे 14 साल गुजर गया है, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं, और जब हम अपने पड़ोस में अगर किसी वजह से लड़ाई हो जाती है, हमारे जानवर किसी के घर में चले जाते हैं या हमारे जानवर किसी के खेतों में चले जाते हैं, तो सब कहते हैं कि तेरे घर में बच्चा तो है नहीं, तो तू मुर्गी और मुर्गे ही से अपना बच्चा बनाए रहती है, बकरी ही को अपना बच्चा बनाए रहती है। तमाम लोग ताने देते हैं, बहन क्या करबला का ताजदार मुझे भी खुद नवाजेगा? खुदा की कसम, अब जब ये जुमला सोनारन ने कहा तो मुसलमान की औरत ने जवाब दिया, रईस की बीवी ने, बिल्कुल बेशक मुसलमानों के मसीहा इमाम हुसैन के दरबार के अंदर मांगने का तरीका देखा जाता है, वहाँ पर जात नहीं देखी जाती, वहाँ पर कास्ट नहीं देखी जाती। अगर मांगने का तरीका अच्छा है तो हुसैन तुम्हें भी नवा देंगे, हुसैन सबको नवाजते हैं और कयामत तक नवाजते रहेंगे। अब वो सोनारन घर के अंदर आती है, आने के बाद अपने शौहर से बताती है, ऐ सोनार सुनो सुनो, आज तो मामला बड़ा अजीबो गरीब है, हमने इस राज को पता कर लिया कि किस वजह से रईस भाई और उनकी बीवी अपने दरवाजे पर इतना बड़ा लंगर करती है। उस लंगर की वजह हमने जान ली है, उस लंगर का कारण हमने जान लिया है। कहा कौन सी वजह है? कहा कौन सा कारण है? कहा कारण ये है कि जो बच्चा हुसैन पैदा हुआ है वो 27 साल के बाद किसी डॉक्टर की वजह से नहीं, किसी हकीम की वजह से नहीं, किसी तबीब की वजह से नहीं, किसी मौलवी की वजह से नहीं, किसी पंडित साधु की वजह से नहीं, किसी मदार की वजह से नहीं, अगर मेरे बच्चे को किसी ने दिया है तो करबला के ताजदार हुसैन ने दिया है। अब सोनार ने कहा अपनी बीवी से, अरे यार 10 साल गुजर गया, हमको कोई बच्चा नहीं, हमें भी लोग ताना देते हैं, हमें भी लोग तंज कसते हैं, हमें भी लोग टिप्पणी करते हैं, इसको भी बच्चा नहीं होगा, ये पांजा है, ये है, वो है, ऐसी वैसी है। सुबह लोग उठते हैं मेरे सामने से, अपना मुंह बंद कर लेती हैं औरतें, इसको मत देखो, मनहूस है, अगर देखोगे तो हमें भी बच्चा नहीं होगा। अब देखें सोनारन इराक में नहीं, हिंदुस्तान में जौनपुर जिले में नूरुद्दीनपुर गांव के अंदर सोनारन भी है। अब करबला के ताजदार से अपने घर में बैठकर भीख मांगती है और करबला की तरफ मुंह कर लेती है, कहती है ऐ करबला के ताजदार सुनो सुनो, मैंने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा है, मैंने तुम्हें जाना नहीं है, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है, मैंने तुम्हें माना नहीं है, लेकिन आज मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने रईस को 27 साल के बाद एक बेटा अता फरमाया है, तो 27 साल के बाद रईस को एक बेटा आप दे सकते हैं, तो क्या उनके पड़ोसन सोनार को और उनके पड़ोसन सोनारिन को 17-14 साल के बाद एक बेटी नहीं दे सकते? ऐ करबला के ताजदार मुझे एक बेटी अता फरमा दे, ऐ करबला के ताजदार मुझे एक बेटी अता फरमा दे। अब सोनारन भी रो रही है, सिस्किया बंधी है, शौहर भी रो रहा है, उनका हस्बैंड भी रो रहा है, सिस्किया बंधी हुई है, दोनों ने रो रो करके मन्नत समाजत मांग ली और कहा है करबला के ताजदार हमें एक बेटी अता फरमा दो, पड़ोस में बेटा दिया है, हमें बेटी दे दो।